जिंदाबाद नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर शेखुल हदीस जिंदाबाद अल जमातुल अशरफिया जिंदाबाद शेखुल हदीस जिंदाबाद अल जमातुल अशरफिया अरबी यूनिवर्सिटी जिंदाबाद नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह के आला हजरत जिंदाबाद और मुफ्ती निजामुद्दीन साहिब जिंदाबाद और मुफ्ती निजामुद्दीन रज़वी मिसबाही साहिब जिंदाबाद नारे तकबीर अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह नारे रिसालत या रसूल এবার अल्लाह ফিলিস্তিন ভাবে বসে যান বাবা বসে যান সব বসে যান হুজুর চলে ভাইরা জান্নাতি দল বসে যান আপনারা জান্নাতি দল জান্নাতি সেজে বসে যান আর হযরত আল্লাহ মাওলানা মুফতি জুবের সাহেবকে দিয়ে দিচ্ছি তবে জান্নাতি দলের পহচান নবীর আদব করা নবীর তাজিম করা নবীর সম্মান করা সাহাবায়ে কেরামরা রাসূল আলাইহি বললেন যে পথে আমি আছি আর আমার সাহাবীরা আছে নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা সাল্লামের থুথু কাশ মোবারককে শরীরে মেখেছেন এটা বুখারী শরীফ প্রথম খণ্ডের 379 পৃষ্ঠাতে আছে দেখে নেবেন হায়াত বাকি মুলাকাত বাকি এখানেই সময় শেষ হুজুর মুফতি সাহেব আমাদের প্রধান অতিথি হুজুর সিরাজুল ফুকাহা সাহেবকে আমাদের মুনাজির আহলে সুন্নাহ শেরে বাঙ্গাল মুফতি জুবায়ের হোসেন সাহেবকে বলা মালা দ্বারা বরণ করে নিছেন নারে তাকবীর अल्लाहु अकबर নারে রিসালাত या रसूल अल्लाह মাসলাক আলা হযরত जिंदाबाद মাসলাক আলা হযরত जिंदाबाद হুজুর সিরাজুল ফুকাহা जिंदाबाद হুজুর সিরাজুল ফুকাহা সাহেব जिंदाबाद হুজুর সিরাজুল ফুকাহা সাহেব जिंदाबाद সুন্নি হানাফি মহাসম্মেলন जिंदाबाद শেরে বাঙ্গাল जिंदाबाद শেরে বাঙ্গাল जिंदाबाद ওলামা আহলে সুন্নাহ पीरे तरीक़त रहबारे शरीयत मुर्शिदे बरहक मुहक्किके मसाइले जदीदा सिराजुल फुक़हा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुहद्दिस मुहक्किक मुदक्किक मुफक्किर हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद निजामुद्दीन मिसबाही रिजवी मद्दजिल्लाहुल आली दामत बरकातुहुमुल आलिया कुदसिया मंचे तिनी उपविष्ट रयेछेन আলহামদুলিল্লাহ যে আজকে এই রকম একজন ইন্টারন্যাশনাল ব্যক্তি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ব্যক্তি যে যার লক্ষাধিক ছাত্র জামিয়া আশরাফিয়া মোবারকপুর আহলুস সুন্নাত আল জামাতের ইলমের প্রাণকেন্দ্র আরবিক ইউনিভার্সিটি সেই আরবিক ইউনিভার্সিটির কর্ণধার দারুল ইফতার প্রধান মুফতি নতুনত্ব বিভিন্ন সমস্যা যত যে কোনো মুহূর্তে দেখা দেয় তার সমাধান প্রদানকারী আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন এই জন্য হুজুরের আমরা সকলে শুকরিয়া আদায় করি বহু মানুষ আছেন আলহামদুলিল্লাহ হুজুরের আশাতে হুজুরের আগমনে আপনারা খুশি না বেজার একটু হাত তুলে বলেন দেখি খুশি আমরা সকলে খুশি কথা বুঝতে না পারি ভাষা বুঝতে না পারি কিন্তু এই রকম ইন্টারন্যাশনাল ব্যক্তি আন্তর্জাতিক ব্যক্তি যার প্রশ্ন উত্তর শোনার জন্য লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হয় লক্ষাধিক মানুষের সামনে হুজুর প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন আলহামদুলিল্লাহ বহু কষ্ট করে এসেছেন এই বয়সে আমরা সকলে খুশি আমি আলোচনা করব না বক্তব্য রাখবো না হুজুরকে লাউড স্পিকার ছেড়ে দেব আর বিরক্ত করব না এবার হুজুরকে লাউড স্পিকার দিচ্ছি হুজুরের চেহারাটা
দেখতে থাকুন। নুরময় চেহারা, মাহশারের দিন বলতে পারেন আল্লাহ সিরাজুল ফুকাহা, মুহাক্কিকে মাসাইলে জাদিদা, খলিফায়ে মুফতি আযমে আলামে ইসলাম, পীরে তরিকত, রাহবারে শরিয়ত, মুর্শিদে বরহক, ওলিয়ে কামিল হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাদ্দিস মুহাক্কিক মুদাক্কিক মুফাক্কির হুজুর নিজামউদ্দিন মিসবাহি রেজভী মাদ্দাজিল্লাহুল আলী নুরময় চেহারাটা একবার দেখেছিলাম। এরই ওসিলাতে হয়তো আল্লাহ তাআলা আপনার জীবনের গুনাহকে ক্ষমা করে দিয়ে জান্নাত দান করবেন মুসলমান। আলহামদুলিল্লাহ। সুতরাং কেউ যাবেন না, দোয়া করে যাবেন। আর খাবার আছে, শেষে খাবার খেয়ে যাবেন, শেষে খাবার খেয়ে যাবেন। সৈয়দ আহমদ রায়বেরেলি একজন গুমরাহ ব্যক্তি। আপনার এই ব্যক্তি যে সিলসিলাতে আছে সেই সিলসিলাতে মুরিদ হওয়া জায়েজ নয়। আর যদি কারো আকীদা সঠিক যদি হয়, আর সিরাতে মুস্তাকিমে যে কিতাবগুলো দেখালো হলো আপনার তাকবিয়াতুল ঈমান, যাতে কুফরি বাক্য আছে, এগুলো যদি কুফরিকে কুফরি মনে করে, বাতিলকে বাতিল মনে করে, আর সুন্নি জামাতের পিওর যদি তার মধ্যে আকীদা যদি থাকে আর ওহাবি থেকে যদি আলাদা থাকে, তবে সে ব্যক্তি सुन्नी। এটা আপনাদেরকে जानता है। हुजूर फतवा रज़ाबिया में इसके बारे में एक मसला है। कुछ लोग कहते हैं कि फतवा रज़ाबिया में आला हजरत ने सैयद अहमद रायबरेली को बुजुर्ग को कहा। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। किछु मानुष हम इंशाल्लाह दूसरे सफर में जब आएंगे तो इन बातों पर हम इंशाल्लाह खुसूसी तवज्जो करेंगे। अभी कुछ दूसरे मसाइल पर चलिए। सलाम मसनून बाद अर्ज ये है कि बाहर शरीयत हिस्सा सोम में है कि मुक्तादी ने सब रकातों में इमाम से पहले रुकू सुजूद कर लिया तो एक रकात बाद को बेगैर किरात पढ़े, क्यों और उसकी दलील क्या है? जवाब मरहमत फरमाए, आईने नवाजिश होगी कि बाहर शरीयत हिस्सा सोम में है कि मुक्तादी ने सब रकातों में इमाम से पहले रुको और सुजूद कर लिया तो एक रकात बाद को बेगैर किरात पढ़े, क्यों और उसकी दलील उसकी क्या? एक रकात कम हुई है तो 4 रकात वाली नमाज एक रकात कम हुई है, लिहाजा एक रकात पूरी कर ले, ये उसकी वजह है। हाँ, ये 3 रकातों में इमाम साहब शिरकत हो रही है, जो आखिरी रकात उसमें शिरकत नहीं हो पा रही है, इस वजह से उस आखिरी रकात को दोबारा पढ़ेगा। 4 रकात तो नमाज जो है इमाम के पीछे ही पढ़े, हाँ, लेकिन इमाम से पहले वो रुकू और सुजूद कर लिया हाँ, तो उसके बाद है एक रकात बाद को बेगैर किरात पढ़े। ये है उसकी बाहर तफसील फुक़हा ने बयान कर दिया है, इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन वजह उसकी वही है कि एक रकात उसकी बिल्कुल तने तनहा हो जा रही है, लिहाजा उस एक रकात को दोबारा पढ़ेगा। फतवा आलमगीरी में उसकी पूरी तौजीह कर दी है। रसूल अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि 72 फिरके जो जहन्नमी होंगे तो ये हमेशा जहन्नम में रहेंगे या कुछ दिन रहकर फिर जन्नत में जाएंगे? 72 फिरके जो जहन्नमी हैं, इनमें 2 तरह के लोग हैं। इस बात में सब शरीक हैं कि उनके अकीदे खराब हैं, बुरे हैं, गलत हैं, इसलिए वो लोग जहन्नम में जाएंगे अकीदे की खराबी की वजह से। लेकिन इसमें 2 तरह के लोग हैं। कुछ लोग वो हैं जो अपने अकीदे की वजह से इस्लाम से निकल जाते हैं, मुर्तद हो जाते हैं, तो ऐसे लोग हमेशा जहन्नम में रहेंगे। और कुछ लोग वो हैं
जो अपने अकीदे की वजह से इस्लाम से निकलते नहीं हैं, जैसे मुतज़िला हैं, ये इस्लाम से निकलते नहीं हैं, इस्लाम में बाकी रहते हैं, तो ये लोग अपने गलत अकीदे की सज़ा पाने के बाद फिर जहन्नम से निकाल दिए जाएंगे। अगर मैयत मुनकर और नकीर के सवालों का जवाब दे दे तो क्या क्या जाएगा, तो क्या कहा जाएगा? नम का नौमतिल उरूस। ये कहना गुनहगार मुसलमानों पे आज़ाब कैसा होगा? कौन लिखा है? देखें, अगर मैयत मुनकर नकीर के सवालों का जवाब दे दे तो क्या कहा जाएगा? नम का मैयत ने नौमतिल उरूस। सवाल के मुनकर नकीर जब इम्तिहान लेंगे कब्र के अंदर मैयत से, तीनों सवालों का जवाब दे दिया, आखिरी सवाल बहुत बुनियादी होता है, इसका भी जवाब दे दिया, तब वो खुश हो जाएंगे कि हम जानते थे कि तुम यही जवाब दोगे। नम का नौमतिल उरूस, सो जाओ जैसे दुल्हन सोती है या जैसे दूल्हा सोता है। दुल्हन या दूल्हा ये बेफिक्र होकर आराम की नींद सोते हैं, तो तुम भी आराम की नींद, सुकून की नींद, बेफिक्र होकर सो जाओ। अब क़यामत तक के लिए तुम्हारे वास्ते कोई खटका, कोई फिक्र, कोई गम नहीं है। क्या फरमाते हैं उलमाए किराम इस मसला में कि जायद ने अपनी तहरीर में लिखा कि देवबंदी अहले हदीस और तफजीली शिया इनमें से कोई भी ज़रूरियत दिन के मसाइल व अकायद का इनकार नहीं करते हैं। इस तहरीर के जवाब में बकर ने कहा कि कोई मौलवी या मुफ्ती अगर ये कहे कि देवबंदी शिया और अहले हदीस ये लोग ज़रूरियत दिन के किसी मसला या अकीदा का इनकार नहीं करते हैं, इस तरह की सोच और फिक्र रखने वाले मौलवी को मस्जिद में इमाम बनाना सही नहीं, ये गलत है। तो जितनी जल्दी हो सके इस तरह इमाम को मस्जिद से निकाल दे। दरियाफ्त तलब ये अम्र है कि जायद और बकर का इस तरह कहना इंदा शरा दुरुस्त है या नहीं? बकर ने क्या कहा है? बकर ने कहा कि अगर इसी तरह का किसी का अकीदा हो तो उसको मस्जिद का इमाम बनाना सही नहीं, ये गलत है। जितने जल्द हो सके उसको। जायद ने कहा, जायद ने अपने तहरीर में लिखा है कि देवबंदी अहले हदीस और तफजीली शिया इनमें से कोई भी ज़रूरियत दीन के मसाइल व अकायद का इनकार नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है, जिन्होंने लिखा है वो गलत लिखा है। कुछ हद तक कुछ बातें सही हो सकती हैं, लेकिन कुल्ली तौर पर ऐसा कहना मुनासिब नहीं है। और वो हम आए थे, उनको बुला कर लाते तो हम उनको समझा देते, और अब भी अगर मौका मिले तो उनको समझा दिया जाएगा। ये मसला अभी खुली बस में लाने का नहीं था, पहले यह है कि उनको समझाया जाए, समझ जाते हैं तो बात ख़त्म की जाए, और नहीं समझते हैं तो उसके बाद बस में लाया जाए। अभी हम इस वक्त इस मसले पर कोई तफसीली रोशनी नहीं डालेंगे। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही, दोबारा हमारी आपकी मुलाकात रही तो हम इस पर तफसील के साथ और दलाल की रोशनी में हम इस पर वजाहत करेंगे, गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और फिलहाल जिसने ये बात कही है उससे मेरी मुलाकात कराइए ताकि हम उसको समझाएं। किसी मज़ार शरीफ ज़ियारत करने के लिए कोई अगर जाए, मज़ार ज़ियारत करने के बाद मज़ार शरीफ में भूसा देना जायज़ है या नहीं? नहीं, मज़ार शरीफ को भूसा देना मना है। हुक्म यह है कि मज़ार शरीफ से 4 हाथ के फासले पर खड़ा हो या और ज़्यादा फासले पर खड़ा हो, वहीं पे खड़ा होकर फातिहा पढ़े, इसाले सवाब करे और फिर वहीं से वापस चला आ जाए। बोसा देने का हुक्म नहीं है। बोसा देना हज असवद को है। কোনো মাজার শরীফে যদি যান, মাজার শরীফ জিয়ারত করে মাজার শরীফে চুমা দিবেন না। हुजूर बराए मेहरबानी मज़ार शरीफ जियारत करने के अदब क्या है? मज़ार शरीफ के ज़ियारत करने का अदब यह है कि पांती से जिधर मस्जिद का पैर है
उस तरफ से मज़ार शरीफ के अंदर जाए और जिस तरफ मस्जिद का मुंह है उस तरफ खड़ा हो और कम से कम 4 हाथ के फासले पर खड़ा हो या उससे ज्यादा। मस्जिद के लिए ये ईंट और पत्थर हिजाब नहीं है, रोक नहीं है। आप मज़ार शरीफ में जहाँ भी रहेंगे आपको मस्जिद की निगाहों में रहेंगे, मस्जिद आपको देखेगा। आप नहीं देखेंगे लेकिन मस्जिद आपको देखेगा। वहाँ से आप फातिहा पढ़ें, उनको सवाब पहुँचाएंगे तो मस्जिद को सवाब मिलेगा, मस्जिद को खुशी होगी। करीब ना जाएं और ना कब्र को बोसा दें। कब्र को बोसा देने का जिक्र कहीं भी कुरान और हदीस में नहीं है, लिहाजा इससे बचें। जिन चीज़ों के बोसा देने का जिक्र है उनको बोसा दिया जाएगा, कब्र के बोसा देने का जिक्र नहीं है, लिहाजा कब्र से बचें। माजार शरीफ जियारत करने की, मज़ार शरीफ हो, कब्र हो, तो उसमें उसको बोसा नहीं देंगे, उससे बचेंगे। একটু শুনতে পেলেন আপনারা যে মাজার শরীফ যদি জিয়ারতে যান, পায়ের দিক থেকে প্রবেশ করে জায়গা যদি থাকে 4 হাত দূরে দাঁড়িয়ে জিয়ারত করে মাজার শরীফ থেকে বেরিয়ে আসবেন। মাজার শরীফে চুমা দিবেন না, মাজার শরীফ স্পর্শ করবেন না। এটাই হচ্ছে মাজার শরীফের জিয়ারতের আদব। এটা যে হুজুর খাতনা में दावत करना जायज है या नहीं? खतना की दावत कहीं सरकार सलाम से साबित नहीं है, तो खतना सुन्नत है, ये सुन्नत कर दिया जाए। और अगर कोई इस नीयत से दावत करे कि हमने सुन्नत अदा किया है तो वो दावत कर सकता है, लेकिन हमारे उलमा फरमाते हैं कि एक तरह की बिदअत है, इससे बचें। लेकिन नाजायज नहीं है। इस खतना को वजह से कोई करता है तो मना होगा। अगर ये कोई नियत रखे कि एक सुन्नत है, अल्लाह ने हमको सुन्नत अदा करने की तौफीक अदा फरमाई, इस नियत से कोई दावत करे तो इसकी इजाजत होगी। আপনারা ইউটিউবে দেখছেন যে কিছু ভুঁইফোড় বক্তা বেরিয়েছে, বলছে যে মুসলমানের খানা দেওয়া হারাম। এই ফতোয়াটা হচ্ছে ভুল ফতোয়া। মুসলমানি দেওয়া হচ্ছে, খাতনা দেওয়া হচ্ছে সুন্নাত। আর এই সুন্নাত মনে করে খুশিতে যদি আত্মীয় স্বজনকে যদি খাওয়ায়, খানা যদি দেয়, তবে সেটা জায়েজ, কোনো জরুরি নয়। কেউ যদি দিতে না পারে কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু কেউ যদি দেয় তবে সে দেওয়াটা জায়েজ। কথা বুঝতে পারলেন মশলাটা? कोई सुन्नी सही अकीदा रखते हैं और किसी पीर से वो मुरीद अगर नहीं है तो उसका कोई कसूर है? क्या कोई सुन्नी सही अकीदा है? अकीदा है लेकिन किसी पीर से वो मुरीद नहीं है, वो मुरीद होना भी नहीं चाहते हैं कि मुरीद होना जरूरी नहीं है, तो क्या मुरीद होना जरूरी है या नहीं? नहीं, मुरीद होना ना फर्ज है ना वाजिब है, मुस्ताहब है। और अगर कोई मुरीद नहीं है लेकिन वलियों से अकीदत और मोहब्बत रखता है, उनके तरीक़े पर चलता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता है, उनकी सुन्नत की पैरवी करता है, नमाजों की पाबंदी करता है, तरावी पढ़ता है, सुन्नतें पढ़ता है, मिलाद शरीफ करता है, तो उसके पीर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हुजूर गौसे पाक हैं, वो पीर का नहीं है, मुरीद नहीं हुआ है। इसके बावजूद हुजूर गौसे पाक उसको अपने दामन में ले लेंगे और सरकार इस्लाम उसकी शफाअत फरमाएंगे। वो बेपीर का नहीं, बेपीर का वो होता है जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत न रखे, जो गौसे पाक से मोहब्बत न रखे, जो वलियों से नफरत करे, जो इमामों से नफरत करे, ये बेपीर का होता है। और जो अहले सुन्नत व जमात से हैं ये बेपीर के नहीं होते। मुरीद हो जाए तो बहुत अच्छा, और मुरीद न हो तो भी वो बेपीर के नहीं है। उनका एक पीर और हादी और रहनुमा कुरान है, हदीस है, रसूलुल्लाह है, गौसे पाक है। शबे बारात के दिन हलवा खाना जायज है या नहीं? हलवा खाना जायज है और शबे फातिहा बारात के करना दिन। मुस्तहसन है। फातिहा करना चाहिए, फातिहा करना मुस्तहसन है। फातिहा कीजिए, खाइए और दोस्त अहबाब को, रिश्तेदारों को, फकीरों मोहताजों को खिलाइए। शबे बारात के दिन, हाँ, শবে বারাতের দিন হালুয়া খাওয়া জায়েজ, ফাতিহা দিন
ফাতেহা করে আপনি খান, ছেলে মেয়েদেরকে খাওয়ান, সবে বারাতে হালুয়া রুটি খাওয়া যায়। बस ये है कि एहतियात के साथ खाए। हमने देखा है कुछ लोग जम कर इतना खा लेते हैं कि उसके बाद जी भर कर सोते हैं और शब बेदारी नहीं कर पाते। थोड़ा खाइए, वो रात जागने की है, रात भर जाग करके अल्लाह की इबादत कीजिए। जितनी इबादत करेंगे, तौबा इस्तिग़फ़ार करेंगे, अल्लाह जितना मांगेंगे अल्लाह उतनी ज़्यादा आपको अता फरमाएगा। ज़्यादा खा लेंगे तो फिर जाग नहीं पाएंगे, कम खाइएगा तो जागिएगा। तो हलवा बनाइए, फातिहा कीजिए, दोस्त अहबाब में बांटिए, फ़कीरों मोहताजों को खिलाइए, भाई बहनों को दीजिए, थोड़ा खाइए और रात भर जाग कर दुआ कीजिए, अल्लाह से मांगिए। हुजूर, मैयत के साथ खजूर या मिठाई साथ ले जाते हैं, दफन करने के बाद जब आदमी वापस आते हैं उस वक्त उसको दिया जाता है। ये ले जाना और उसको देना क्या जायज है या कोई नहीं? बात नहीं है, जायज़ है जायज है। कि लोग जो साथ में जाते हैं उनको खिला दिया जाए और उसका सवाब मैयत को भी पहुंचे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, जायज़ है और ऐसा कर सकते हैं। মাটি দেওয়ার জন্য মাইয়াত যখন নিয়ে যান তখন অনেকে নিয়ে যান না ওই আপনার খেজুর বা খোরমা বা এরকম কোন ওই যে দানাগুলো, ওগুলো নিয়ে গিয়ে মাটি দেওয়া হয়। মাটি দেওয়ার পরে তখন যখন ফিরে আসে তখন বিতরণ করা হয়। এটা জায়েজ। অনেকে নাজায়েজ বলছে, হারাম বলছে। এটা নাজায়েজ ও হারাম নয়। মাটি দিয়ে ফিরে আসার পথে ওটা যদি দেয় সেটা দেওয়া যায়। दफन करने के बाद कब्र में आजान देना जायज है या नहीं? कब्र में अजान देना, कब्र पर आजान देना, हाँ, कब्र के पास अजान, कब्र के पास आजान देना। कब्र में अजान देने मतलब तो यह है कि आप भी कब्र में चले जाएं, तो ये नहीं। कब्र में तन्हा मैयत को छोड़ दीजिए, आप बाहर निकल आइए और कब्र के करीब आस पास में जहाँ मुर्दे न दफन हो तो वहाँ खाली ज़मीन पर खड़े होकर के और अजान दे सकते हैं। ये अजान देना सुन्नत से साबित है और इसको कर सकते हैं। इससे मैयत को तलकीन होती है। बस हम फरिश्ते आते हैं, पूछते हैं तेरा दीन क्या है, तेरा रब कौन है, तो अल्लाह अकबर जब कहता है तो याद आता है कि मेरा रब अल्लाह है। अल्लाह अकबर। तेरा दीन क्या है, ये कहता है हय्य अलस सलाह हय्य अलल फलाह। ये समझ जाता है कि मेरे दीन का ये काम है। मेरा दीन वो है जिसमें नमाज का हुक्म है, अजान का हुक्म है। तो ये देना चाहिए, जहाँ पे इसका रिवाज हो वहाँ इसको जारी रखें, बाकी रखें, देना चाहिए। इससे मैयत को तलकीन होती है। ये अजान हकीकत में नमाज के लिए अजान नहीं है, ये अजान हकीकत में तलकीन मैयत है। तलकीन हदीस पाक में है, मुस्लिम शरीफ किताबुल जनाज़ में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लक़िनू मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह। अपने मुर्दों को तलकीन करो, सिखाओ। क्या सिखाओ? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और अजान में जनाब अल्लाहु अकबर भी है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह भी है और सारी चीज़ें इसके अंदर है। अच्छा, एक बड़ा फ़ायदा ये होता है, एक हदीस में आया है कि जब मुर्दा को मुनकर नकीर जगा करके और उससे पूछते हैं कि मन रब्बो का मन रब्बो का, तेरा रब कौन है, तो वो अपनी तरफ इशारा करता है मुझको बता दो, मैं तेरा रब हूँ। तो अब उस वक्त ये बड़ी कठिन घड़ी होती है, तन्हाई की घड़ी है, अंधेरी कोठरी है, तन्हा है और एक शैतान राह मार रहा है कि मुझको कह दो, मुझको कह दो। वो धोखे में पड़ सकता है। ऐसे वक्त में जब आप कहते हैं अल्लाहु अकबर, तो शैतान वहां से 36 मील दूर भाग जाता है। हदीस शरीफ में जब अजान की आवाज शुरू होती है तो शैतान गोज मारता हुआ, रिया निकालता हुआ बुलंद आवाज से 36 मील दूर चला जाता है। शैतान भाग गया तो ये जो फितना पैदा कर रहा था, फितना तो खत्म हो गया और दूसरे तलकीन हो गई तेरा रब अल्लाह है। तो इससे मैयत के लिए नफा पहुंचाना है, ये जायज़ है, लिहाजा ऐसा कर सकते हैं। इस मौजू पर आला रहमा का एक रिसाला है, ईज़ानुल अज्र फी अज़ानिल क़ब्र। हुजूर, मैयत के लिए दिन मुतय्यन करके इसाले सवाब करना, जैसे हमारे इलाके में करते हैं 3 दिन के दिन या 4 या 40, ऐसा करना
कैसा? इसमें कोई बात नहीं, ये आसानी के लिए है कि तीसरे दिन या चौथे दिन या 10वें दिन या 40वें दिन को हम फातिहा करेंगे तो आसानी के साथ लोग उस दिन जमा हो जाएंगे, वरना कोई आज आएगा, कोई कल आएगा, कोई परसों आ जाएगा, कोई नरसों आ जाएगा, तो ये दुरुस्त नहीं है। तो आसानी के लिए ताकि लोग उस दिन पहुंच सकें, फातिहा के तारीख मुकर्रर कर देना, दिन मुकर्रर कर देना, ये जायज़ है। बुखारी शरीफ के हदीस में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन मुकर्रर करके लोगों को वाज किया करते थे। औरतों ने एक मरतबा अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मर्द आपसे फ़ायदा उठाते हैं, आपके पास हाजिर होते हैं, आपका आवाज़ सुनते हैं, हमारे लिए भी कोई दिन मुकर्रर कर दीजिए। सरकार ने उनके लिए एक दिन मुकर्रर कर दिया, हफ्ते में एक रोज़ मुकर्रर कर दिया था, और उस रोज़ सरकार सल्लल्लाहु औरतों के पास जा करके उनको वाज किया करते थे। तो जब सरकार सलाम ने आसानी के लिए वाज के लिए दिन मुकर्रर कर दिया, तारीख मुकर्रर कर दिया, तो हम लोग भी वाज के लिए, जलसे के लिए दिन और तारीख मुकर्रर कर सकते हैं, फातिहा के लिए दिन और तारीख मुकर्रर कर सकते हैं। ये जायज़ और दुरुस्त है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये बुखारी शरीफ की हदीस से साबित है। মৃত ব্যক্তির জন্য দিন তারিখ নির্দিষ্ট করে 3 দিনের দিন, 4 দিনের দিন, 10 দিনের দিন, 40 দিনের দিন আমাদের দেশে যে প্রচলন আছে, মাইয়াতের জন্য, মৃত ব্যক্তির জন্য ইসালে সাওয়াব করা, মিলাদ শরীফ করা, ফাতিহা কোরআন খানি করা, এগুলি আসানের জন্য, তার মানে সুবিধার্থে এগুলো দিন তারিখ নির্দিষ্ট করে করা হয়। এটা করা হচ্ছে জায়েজ। দিন তারিখ নির্দিষ্ট করে করা জায়েজ। দিন তারিখ নির্দিষ্ট করে 3 দিনের দিন করেন বা 4 দিনের দিন করেন, এটা করা জায়েজ। এগুলোকে ওয়াহাবি দেওবন্দি যারা, তারা নাজায়েজ ও হারাম বলছে। এটা তাদের ভিত্তিহীন কথা, দলিলহীন কথা। এটা শরীয়তে করা যায়। হুজুর, মুসলমান होने के लिए तकलीद शख्सी क्या जरूरी है? शरीयत पर अमल करने के लिए तकलीद शख्सी जरूरी है। मुसलमान होने के लिए तो जिन चीज़ों की तस्दीक और जिन चीज़ों का अमल ज़रूरी है वो हदीस शरीफ में बता दिया गया है, लेकिन उस पर हम अमल कैसे करेंगे, उस पर अमल करने के लिए तकलीद शख्सी ज़रूरी है। हदीस पाक में और कुरान पाक की आयतों में इसका जिक्र है। हमारी किताब है अहादीस सहीहैन से गैर मुक़ल्लिदीन का इन्हिराफ, उसमें हमने तकलीद उर्फ़ी के मौजू पर बहुत तफसील के साथ कुरान की दलीलों से, हदीस की दलीलों से, अक़ली दलीलों से रोशनी डाली है। उसे आप लोग पढ़िए और हो सके किसी भाई से, किसी आलिम से तो बांग्ला ज़बान में उस बात का तर्जुमा करके उसको शाये कर दें, ताकि हमारे सब भाई उन दलीलों से आगाह हो जाएं। हम एक दलील बता देते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी तकलीद हुई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी तकलीद हुई है। वो सुनिए, हदीस में है कि जब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाहु अन्हु को यमन का गवर्नर बनाकर भेजा, तो पूछा, मुआज़, तुम फैसला कैसे करोगे? अर्ज़ के, या रसूलल्लाह, किताबुल्लाह से, कुरान से फैसला करूँगा। हुजूर ने पूछा, फ़इल्लम तजिद फ़ी किताबिल्लाह, किताबुल्लाह में न पाओ तो? ये नहीं फरमा सका किताबुल्लाह में न हो तो, ये नहीं कहा किताबुल्लाह में न पाओ तो। किताबुल्लाह में सब कुछ है, हमारे दिमाग की बात है कि हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं या नहीं पहुँच पाते हैं। इसलिए सरकार ने फरमाया कि अगर तुम्हें किताबुल्लाह में उसका जवाब न मिले तो क्या करोगे? तो उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, फ़बे सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से फैसला करूँगा। हुजूर ने पूछा, फ़इल्लम तजिद फ़ी सुन्नत रसूलिल्लाह, अगर तुम रसूलुल्लाह की सुन्नत में न पाओ तो क्या करोगे? सुन्नत में भी सब कुछ है, ये नहीं फरमाना सुन्नत में न हो तो, बल्कि फरमाना सुन्नत में तुम न पाओ तो क्या करोगे, कैसे फैसला करोगे? तब जवाब सुनिए उनका, क्या जवाब देते हैं? कहते हैं, फाज्तहिदु राई, अब मैं कुरान और हदीस में गौर करके इज्तिहाद करूंगा और मसला निकालूंगा और उस मसले के मुताबिक मैं फैसला करूंगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुश होकर, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है कि उसने रसूल के बनाए हुए गवर्नर को
हक बात की तौफीक अता फरमाई, जिससे अल्लाह राजी है, अल्लाह के रसूल राजी हैं। अब सुनिए आप, जो मुज्तहिद फ़क़ीह मुज्तहिद कुरान और हदीस में गौर करके जो मसले निकालता है, उसी मसले को मानने और उस पर अमल करने का नाम तकलीद है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़रत मुआज़ बिन जबल गवर्नर बनाकर यमन भेजे गए और उन्होंने फरमाया था, या रसूल अल्लाह, जो मसला किताबुल्लाह में नहीं मिलेगा, सुन्नत रसूलुल्लाह में नहीं मिलेगा, तो मैं इज्तिहाद करके उसका फैसला जारी करूँगा। और सरकार ने इसको बाकी रखा और इस पर खुशी की और अल्लाह ताला की तारीफ बयान फरमाई। इससे ये मालूम हुआ कि उन्होंने सरकार के ज़माने में आदे रिसालत में अपने गवर्नरी के ज़माने में यमन में इज्तिहाद से जो फैसला किया, सरकार ने इजाज़त दे दी, तुम उस पर फैसला कर सकते हो। और जब फैसला होगा तो लोग उस पर अमल करेंगे। वहाँ पे जो लोग उस पर अमल करेंगे वो हज़रत मुआज़ बिन जबल की तकलीद करेंगे। तो ईमान लाना तो ज़रूरी है रसूलुल्लाह पर, लेकिन रसूलुल्लाह ने जो बातें बताई हैं उन पर चलने के लिए कभी कभी तकलीद की ज़रूरत पेश आ जाती है। चुनांचे खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी हज़रत मुआज़ बिन जबल को इसकी इजाज़त दी। तो ये है उसकी वजह। और कभी भी ऐसा नहीं है कि तकलीद के खिलाफ कोई बात हुई हो। जो लोग फ़क़ीह और मुज्तहिद थे वो इज्तिहाद करके अमल करते थे, और जो लोग फ़क़ीह और मुज्तहिद नहीं थे तो फ़क़ीह और मुज्तहिद के इज्तिहाद पर अमल करके तकलीद करते थे। ऐसा नहीं हुआ कि फ़क़ीह मुज्तहिद भी ना हो और तकलीद भी ना करे, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये बस आज के ज़माने में कोई 100 साल के लगभग से कुछ लोग कर रहे हैं, जो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कुरान के और हदीस के खिलाफ है। किसी मुज्तहिद की तकलीद करने को अगर कोई शिर्क का है तो उसके बारे में क्या शरीयत का हुक्म है? इस पर सारी बात मैंने कर दी है। जो शिर्क कहे ऐसे को जो मुशरिक नहीं है, तो शिर्क उसकी तरफ खुद पलटकर चला जाएगा, वो खुद मुशरिक हो जाएगा। क्योंकि सरकार ने फरमाया, जो किसी मुसलमान को काफिर कहे वो काफिर न हो तो कुफ्र उसी पर पलट जाएगा। तो शिर्क उसी पर पलट जाएगा, उसको अपने ईमान की खैर मनाना चाहिए। আপনারা শুনছেন এই যে লামাযহাবী যারা বেরিয়েছে, গায়ের মুকাল্লিদ, এই বুকের উপরে হাত বাঁধা, এরা আপনার বলে যে মাযহাব যারা মান্য করে তারা মুশরিক। তা আমরা মাযহাব মান্য করি মানে আমাদেরকে মুশরিক বলে। তা আমাদেরকে মুশরিক বলার কারণে, কাফের বলার কারণে তারা নিজেরাই হচ্ছে কাফের ও মুশরিক। কথা বুঝতে পারলেন? হুজুর এটা উত্তর দিলেন। তাকলিদ, ইমাম মান্য করা হচ্ছে আমাদের জন্য জরুরি। मैं बता दूं तकलीद क्या है, मैं थोड़ी सी रोशनी डाल दूं। देखिए, कुछ मसाइल वो हैं जो कुरान और हदीस से साफ साफ साबित हैं, वहाँ उसी पर अमल किया जाएगा, तकलीद नहीं की जाएगी। कुछ मसाइल वो हैं जो इजमाए उम्मत से साबित हैं, वहाँ भी उस पर अमल किया जाएगा, तकलीद नहीं की जाएगी। कोई मसला नया ऐसा आ गया कि कुरान में उसका हुक्म नहीं मिल रहा है, एक, हदीस रसूलुल्लाह में उसका हुक्म नहीं मिल रहा है, दो, इजमा उम्मत में उसका कोई हुक्म नहीं मिल रहा है, तीन, तो अब क्या करेंगे? अब इज्तिहाद करेंगे। मुज्तहिद इज्तिहाद है कि जो बताएगा उस पर अमल करेंगे। इसी का नाम तकलीद है। और ये तकलीद रसूलुल्लाह के ज़माने से ही होती आई है, आज भी है और होती रहेगी। हुजूर, उधड़ी और बट खाना कैसा है? ओझड़ी और बट, देखिए, जो बड़े जानवर होते हैं उनकी ओझड़ी में कई तहें होती हैं, बता कई परत होते हैं, उसी में गलाजत रहती है। तो जिस ता में गलाजत होती है उसको, उस ता को छोड़ाकर अलग कर दिया जाए, तो जो नीचे वाली ता है वो खाली गोश्त है, उसी को बट कहते हैं। तो बट खाना जायज़ है। और जिस
हिस्से में गलाजत रहती है, उसको खाना नाजायज और मकरूह तहरीम भी है। जैसे मान लीजिए गद्दा है, उसमें ता बता कई तरह से कपड़े और रुई लगा दिया गया है, और किसी बच्चे ने पेशाब कर दिया तो एक ता दो ता में पेशाब पहुंच गया तो वो नापाक हो गया, उसको निकाल दीजिए। नीचे की जो ता है वहां पेशाब नहीं पहुंचा है तो नीचे वाली ता पाक है, ऊपर वाली ता नापाक है। ऊपर वाली ता पर नमाज नहीं होगी, नीचे वाली ता पर नमाज हो जाएगी। ऐसे ही जो बट जो खाल होती है ना, मोटी खाल होती है, उसमें कई ताएं होती हैं, तो जिस ता में गलाजत है उसको छुड़ा कर अलग कर दीजिए, उसको खाना नाजायज है। और जो नीचे वाली ता है उसमें गलाजत नहीं है तो उसको वो पाक है, उसको धोकर बोटी बनाकर पकाकर खा सकते हैं, ये जायज है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक जमाने से ये चल रहा है, पहली बार है कि सवाल नहीं ठीक है, थोड़ा हो, फिर भी 1 घंटा हो गया तकरीबन, थोड़ा हो और ज्यादा समझ लिया जाए और महफूज रखा जाए, ये अच्छा। इसे बहुत सुने और याद ना रहे, महफूज ना रहे। इंशाअल्लाह जिंदगी रही हम लोगों की, फिर मुलाकात होगी। कुछ बातें हमने किसी मसला की वजह से छोड़ दिया है, इलेक्शन का दौर है, इलेक्शन के दौर में हर बात नहीं बयान की जा सकती है, तो जो कानून के खिलाफ था उसको मैंने छोड़ दिया है। इंशाअल्लाह इलेक्शन के बाद जब कभी आएंगे तो सब बयान करेंगे, इंशाअल्लाह सब बताएंगे आप लोगों को। अल्लाह ताला इस मजलिस को कबूल फरमाए और आपने जो सीखा उसके मुताबिक अमल करें। खड़े हो जाइए, सलात सलाम पढ़िए।